How your heart work. Your heart is a muscular pump about the size of your fist, located slightly to the left and behind your breastbone. Its function is to pump blood throughout your body. As your heart beats, the walls of the heart squeeze, sending nearly 12 pints of blood throughout your body every minute. In a normal heart, it takes less than 1 minute for blood to travel from your heart to your big toe and back. In that minute, your heart will beat 60 to 80 times. The illustration below shows the body's circulation. The heart pumps oxygen-rich blood throughout the body via arteries, shown in red, veins, shown in blue, bring oxygen-poor blood back to the heart. आपका दिल कैसे काम करता है? आपका हृदय आपकी मुट्ठी के आकार का एक मांसपेशीय पंप है, जो स्थित है थोड़ा बाईं ओर और आपकी छाती की हड्डी के पीछे। इसका कार्य है आपके पूरे शरीर में रक्त पंप करें। जैसे ही आपका दिल धड़कता है, दीवारें हृदय का संकुचन आपके पूरे शरीर में लगभग 12 पिंट रक्त भेजता है हर मिनट। सामान्य हृदय में रक्त के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगता है। आपके दिल से आपके बड़े पैर के अंगूठे और पीठ तक यात्रा करने के लिए उस मिनट में आपका दिल 60 से 80 बार धड़केगा। नीचे दिया गया चित्रण शरीर के परिसंचरण को दर्शाता है। हृदय पंप करता है धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त, लाल रंग में दिखाया गया है, नसों नीले रंग में दिखाया गया है, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाएं। Circulation throughout your body. Heart, veins, blue color, lungs, arteries, red color. आपके पूरे शरीर में परिसंचरण। दिल, नसें नीले रंग की दिखती है। फेफड़े, धमनियां लाल रंग की दिखती है। Heart anatomy. The heart has two sides, separated by an inner wall called the septum. The right side of the heart pumps blood to the lungs to pick up oxygen. The left side of the heart receives the oxygen-rich blood from the lungs and pumps it to the body. The heart has 4 chambers and 4 valves and is connected to various blood vessels. Veins are blood vessels that carry blood from the body to the heart. Arteries are blood vessels that carry blood away from the heart to the body. हृदय की शारीरिक रचना। हृदय के 2 किनारे होते हैं, जो एक आंतरिक दीवार से अलग होते हैं जिसे सेप्टम कहा जाता है। हृदय का दाहिना भाग ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों में रक्त पंप करता है। हृदय का बायां भाग फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे शरीर में पंप करता है। हृदय में 4 कक्ष और 4 वाल्व होते हैं और यह विभिन्न से जुड़ा होता है। रक्त वाहिकाएं। नसें रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर से रक्त ले जाती हैं। दिल, धमनियां रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। शरीर को सुपीरियर वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज टू राइट लंग, राइट पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम राइट लंग, राइट हार्ट, राइट एट्रियम, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, inferior vena cava, from lower body, aorta, to body, pulmonary artery, left pulmonary arteries, to left lung, left pulmonary, veins, from left lung, left heart, left atrium, aortic valve, mitral valve, left ventricle, septum, aorta, superior vena cava, ऊपरी शरीर से, दाहिनी फुफ्फुसिया, धमनियां, दाहिने फेफड़े तक, दाहिनी फुफ्फुसीय नसें, दाहिने फेफड़े से, दायां हृदय, हृदय का एक भाग, फेफड़े के वाल्व, त्रिकुस्पीड वाल्व, दायां वेंट्रिकल, अवर वेना कावा, निचले शरीर से, महाधमनी, शरीर के लिए, फेफड़े के धमनी, बाईं फुफ्फुसीय धमनियां, बाएं फेफड़े तक, बायां फुफ्फुसीय नसें, बाएं फेफड़े से, बायां हृदय, बायां आलिंद, महाधमनी वाल्व, मित्राल वाल्व, दिल का बायां निचला भाग, पट, महाधमनी, heart chamber. Your heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called atria, left atrium and right atrium.
and the two lower chambers are called ventricles, left ventricle and right ventricle. Heart valves. 4 valves control the flow of blood from the atria to the ventricles and from the ventricles into the 2 large arteries connected to the heart. These one-way valves have either 2 or 3 tissue flaps called leaflets that act as doors that open and close to ensure that blood flows only in the proper direction. Right side. The tricuspid valve allows blood to move from the right atrium into the right ventricle. The pulmonary valve allows blood to move from the right ventricle to the lungs to get oxygen. Left side. The mitral valve allows blood to move from the left atrium into the left ventricle. The aortic valve allows blood to move out of the left ventricle into the aorta and then to the rest of the body. हृदय कक्ष. आपके हृदय में 4 कक्ष होते हैं. 2 ऊपरी कक्षों को अटरिया, बायां आलिंद और दायां आलिंद कहा जाता है, और 2 निचले कक्षों को निलय, बायां निलय और दायां निलय कहा जाता है. वेंट्रिकल. हृदय वाल्व. 4 वाल्व अटरिया से निलय तक रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं. निलय से हृदय से जुड़ी 2 बड़ी धमनियों में. इन वन वे वाल्वों में या तो 2 या 3 ऊतक फ्लैप होते हैं जिन्हें लीफलेट कहा जाता है. यह उन दरवाजों के रूप में कार्य करता है जो ये सुनिश्चित करने के लिए खुलते और बंद होते हैं कि रक्त केवल अंदर ही बहता है. उचित दिशा. दाहिनी ओर. ट्राइक्सपिड वाल्व रक्त को दाहिने आलिंद से अंदर जाने की अनुमति देता है. दायां वेंट्रिकल. फुफ्फुसीय वाल्व रक्त को दाएं वेंट्रिकल से आगे बढ़ने की अनुमति देता है. फेफड़ों को ऑक्सीजन मिले. बाईं ओर. माइट्रल वाल्व रक्त को बाएं आलिंद से बाईं ओर जाने की अनुमति देता है. निलय. महाधमनी वाल्व रक्त को बाएं वेंट्रिकल से बाहर निकलने की अनुमति देता है. महाधमनी और फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक. Veins. The veins are major blood vessels connected to your heart. The superior and inferior vena cavae are large veins that carry oxygen. Pour blood from the body back to the heart. The pulmonary veins carry oxygen-rich blood from the lungs to the left side of the heart so it can be pumped to the body. Arteries. The arteries are major blood vessels connected to your heart. The pulmonary artery carries blood from the right side of the heart to the lungs to pick up a fresh supply of oxygen. The aorta is the main artery that carries oxygen-rich blood from your heart to the rest of your body. The coronary arteries, see illustration on next page, are the other important arteries attached to the heart. They carry oxygen-rich blood from the aorta to the heart muscle, which must have its own blood supply to function. नसें. नसें आपके हृदय से जुड़ी प्रमुख रक्त वाहिकाएं हैं. ऊपरी और निचली वेना कावा बड़ी नसें होती हैं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं. शरीर से खराब रक्त वापस हृदय तक पहुंचना. फुफ्फुसीय शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से बाईं ओर ले जाती हैं हृदय के किनारे ताकि इसे शरीर में पंप किया जा सके. धमनियां. धमनियां आपके हृदय से जुड़ी प्रमुख रक्त वाहिकाएं हैं. फुफ्फुसीय धमनी हृदय के दाहिनी ओर से रक्त ले जाती है फेफड़ों को ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति लेने के लिए. महाधमनी मुख्य धमनी है जो आपके शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है दिल से लेकर आपके शरीर के बाकी हिस्सों तक. कोरोनरी धमनियां. अगले पृष्ठ पर चित्रण देखें. अन्य हैं. हृदय से जुड़ी प्रमुख धमनियां. वे ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते हैं हृदय की मांसपेशी को महाधमनी, जिसकी अपनी रक्त आपूर्ति होनी चाहिए. समारोह. Coronary arteries of the heart. The illustration shows the largest of the coronary arteries. Right coronary artery. Posterior descending artery. Right, acute, marginal artery. Left coronary artery. Left circumflex. Left obtuse marginal artery. Left anterior descending artery, LAD. Diagonal arteries. हृदय की कोरोनरी धमनियां. चित्रण कोरोनरी धमनियों में से सबसे बड़ी को दर्शाता है. दाहिनी कोरोनरी धमनी. पश्चर अवरोही धमनी. दाहिनी, तीव्र, सीमांत धमनी.
बाईं कोरोनरी धमनी, वाम परिधि, बाईं कुंठित सीमांत धमनी, बायां पूर्वकाल नीचे की ओर उतर रहा है। धमनी, लैड, विकर्ण धमनियां। हार्ट फंक्शन। A. The right side of your heart. The right side of your heart takes in oxygen poor blood, blue, from the body and pumps it into the lungs to receive oxygen. Blue arrows in the illustration below show the path of the oxygen poor blood through the right atrium, tricuspid valve, right ventricle, and pulmonary valve to the lungs where the blood will receive oxygen. Blood from upper body, superior vena cava, right atrium, tricuspid valve, right ventricle. Blood from lower body, inferior vena. Blood is pumped to lungs. Pulmonary arteries, pulmonary valve. हृदय का कार्य। A. सही। आपका पक्ष। दिल, आपके हृदय का दाहिना भाग ऑक्सीजन रहित रक्त, नीला, लेता है। शरीर और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसे फेफड़ों में पंप करता है। में नीले तीर। नीचे दिया गया चित्रण ऑक्सीजन रहित रक्त का मार्ग दिखाता है। दायां आलिंद, ट्राइक्सपिड वाल्व, दायां निलय और फुफ्फुसीय वाल्व। फेफड़े जहां रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ऊपरी शरीर से खून। प्रधान वेना कावा, हृदय का एक भाग। त्रिकुस्पीड वाल्व, दायां वेंट्रिकल, निचले हिस्से से खून। शरीर, अवर्नस, रक्त को फेफड़ों में पंप किया जाता है। फेफड़िया की धमनियां, फेफड़े के वाल्व। B. The left side of your heart. The left side of your heart takes in oxygen-rich blood, red, from the lungs and pumps it out to the body. Red arrows in the illustration below show the path of the oxygen-rich blood through the left atrium, mitral valve, left ventricle, and aortic valve to the aorta. The aorta delivers this oxygen-rich blood to the rest of your body. Blood is pumped out to body, aorta. Aortic valve. Blood comes from lungs, pulmonary veins. Left atrium, mitral valve, left ventricle. आपके हृदय का बायां भाग। आपके हृदय का बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त, लाल, लेता है। फेफड़े और इसे शरीर में पंप करते हैं। नीचे दिए गए चित्रण में लाल तीर। बाएं आलिंद, माइट्रल के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त का मार्ग दिखाएं। महाधमनी के लिए वाल्व, बायां वेंट्रिकल और महाधमनी वाल्व। महाधमनी इसे वितरित करती है। आपके शरीर के बाकी हिस्सों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप किया जाता है। शरीर से बाहर, महाधमनी। महाधमनी वाल्व, रक्त फेफड़ों, फुफ्फुसीय शिराओं से आता है। बायां आलिंद, मित्राल वाल्व, दिल का बायां निचला भाग। टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। योर हार्ट मसल नीड्स ब्लड टू फंक्शन। Acute coronary syndrome, heart attack and unstable angina. The following section provides you with information about heart attacks and unstable angina, two well-known heart problems that fall under the term acute coronary syndrome, ACS. What is acute coronary syndrome? Acute coronary syndrome is a medical term used to describe a condition where the blood flow to the heart muscle is severely reduced or suddenly stopped. When blood cannot flow to the heart muscle can become damaged. Heart attack and unstable angina are both conditions of acute coronary syndrome, ACS. हृदय समस्याओं के प्रकार और सर्जिकल प्रक्रियाएं। आपके हृदय की मांसपेशी, खून की जरूरत है कार्य करने के लिए। Acute coronary syndrome, दिल का दौरा और अस्थिर एंजाइना। निम्नलिखित अनुभाग आपको दिल के दौरे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और अस्थिर एंजाइना, दो प्रसिद्ध हृदय समस्याएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। शब्द अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है? अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक चिकित्सा शब्द है जिसका उपयोग किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह गंभीर रूप से कम या अचानक हो जाता है। रोका हुआ, जब रक्त हृदय तक प्रवाहित नहीं हो पाता है, तो हृदय की मांसपेशी हो सकती है।
क्षतिग्रस्त हो जाओ। दिल का दौरा और अस्थिर एंजाइना दोनों ही स्थितियां हैं। तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम ACS। What causes acute coronary syndrome? Acute coronary syndrome usually results from the buildup of fat, cholesterol, or other substances, called plaque, inside the coronary arteries. Coronary arteries are small vessels on the outside of your heart. These arteries supply blood to your heart muscle. If plaque builds up inside these arteries, they may narrow and lose their ability to deliver blood and oxygen to your heart. This condition is called atherosclerosis, hardening of the arteries, or coronary artery disease. तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम का क्या कारण है? तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम आमतौर पर वसा के निर्माण से उत्पन्न होता है। कोरोनरी धमनियों के अंदर कोलेस्टेरॉल या अन्य पदार्थ, जिन्हें प्लाक कहा जाता है। कोरोनरी धमनियां आपके हृदय के बाहर छोटी वाहिकाएं होती हैं। इन धमनियां आपके हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती हैं। अगर प्लाक अंदर जमा हो जाता है, ये धमनियां संकीर्ण हो सकती हैं और रक्त पहुंचाने की क्षमता खो सकती हैं। आपके हृदय को ऑक्सीजन। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस, सख्त होना कहा जाता है। धमनियों का या कोरोनरी धमनी रोग। Your heart muscle needs blood to function. आपके हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। Heart damage from a blocked coronary artery. A. Location of the heart in the body. Heart muscle. अवरुद्ध कोरोनरी धमनी से हृदय को क्षति। A. शरीर में हृदय का स्थान। हृदय की मांसपेशी shows a section of the coronary artery with plaque buildup and a blood clot. Coronary artery blood flow blocked. Blood clot blocks artery. Plaque buildup. Plaque is a buildup of fat, cholesterol, and other substances. पट्टिका के साथ कोरोनरी धमनी का एक भाग दिखाता है। निर्माण और रक्त का थक्का बनना। कोरोनरी धमनी, खून का दौरा, अवरोधित, खून का थक्का, धमनी को ब्लॉक कर देता है। फलक बनाया। प्लाक एक बिल्ड अप है। वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ। हार्ट अटैक और acute myocardial infarction AMI. A heart attack occurs when the blood flow to the arteries in your heart is blocked. This happens when plaque builds up in your heart arteries and blocks blood flow. Your heart muscle needs blood to function. If your heart arteries are blocked, the heart muscle beyond the blockage doesn't get enough oxygen. Without oxygen, your heart muscle gets damaged or could even die. This is called a heart attack or acute myocardial infarction. Plaque inside your heart artery can also break or rupture. When this happens, a blood clot forms around the plaque and can also block the blood flow to your heart. दिल का दौरा या तीव्र रोधगलन AMI. दिल का दौरा तब पड़ता है जब आपके हृदय की धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अवरोध ऐसा तब होता है जब आपके हृदय की धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है। रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है। आपके हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। अपने अगर हृदय की धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, हृदय की मांसपेशियां अवरोध से परे नहीं होती हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करें। ऑक्सीजन के बिना आपके हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मर भी सकती हैं। इसे दिल का दौरा या तीव्र रोधगलन कहा जाता है। आपकी हृदय धमनी के अंदर की पट्टिका भी टूट सकती है या फट सकती है। जब ऐसा हुआ, पेन प्लाक के चारों ओर रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त को अवरुद्ध भी कर सकता है। अपने हृदय में प्रवाहित करें। Unstable angina. You may have had stable angina, chest pain, before. You may have known when to expect your symptoms, like while you are exercising. Stable angina usually goes away when you rest or take your angina medicine, triglycerine.
Unstable angina happens when blood flow to the arteries in your heart is suddenly slowed by plaque that narrows the arteries in your heart. Small blood clots that form in these arteries. Unstable angina symptoms are similar to those of a heart attack. The following is important information to know about the symptoms of unstable angina. You may experience unexpected chest pain or discomfort that usually occurs while you are resting. The symptoms may not go away when you rest or take your angina medicine, nitroglycerin. The symptoms may get worse or happen at times that it didn't before. The symptoms may mean you are having a heart attack. गलशोथ आपको पहले स्थिर एंजाइना, सीने में दर्द रहा होगा। शायद आप जानते होंगे आपके लक्षणों की अपेक्षा कब की जानी चाहिए, जैसे कि जब आप व्यायाम कर रहे हों। स्थिर एक जब आप आराम करते हैं या एंजाइना की दवा लेते हैं तो जीना आमतौर पर दूर हो जाता है। ट्रोग्लिसरीन अस्थिर एंजाइना तब होता है जब आपके हृदय की धमनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अचानक धीमा हो गया प्लाक जो आपके हृदय की धमनियों को संकरा कर देता है। इन धमनियों में छोटे छोटे रक्त के थक्के बन जाते हैं। अस्थिर एंजाइना के लक्षण दिल के दौरे के समान होते हैं। निम्नलिखित लोइंग अस्थिर के लक्षणों के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। एंजाइना आपको सीने में अप्रत्याशित दर्द या असुविधा का अनुभव हो सकता है। आमतौर पर तब होता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। जब आप आराम करते हैं या अपना आहार लेते हैं तो लक्षण दूर नहीं हो सकते हैं। एंजाइना की दवा नाइट्रोग्लिसरीन लक्षण बदतर हो सकते हैं या कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ है। पहले लक्षणों का मतलब ये हो सकता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है। How is acute coronary syndrome diagnosed? A doctor will ask you about your symptoms, health history and complete a physical exam. You will have several tests to find out what is causing your symptoms. The following common tests are used to tell whether you have unstable angina or have had a heart attack. Electrocardiogram, EKG or ECG, measures the electrical signals that control the way your heart beats. What will happen? Small sticky pads or patches will be placed on your chest, arms, and legs. Wires connected to a machine will be attached to these patches. These wires connect to the EKG machine, which graphs the electrical activity of your heart. Your doctor will look for certain changes on the graph to see if your heart is not getting enough blood or if you are having a heart attack. तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम का निदान कैसे किया जाता है? एक डॉक्टर आपसे आपके लक्षणों, स्वास्थ्य इतिहास और संपूर्ण के बारे में पूछेगा। एक शारीरिक परीक्षा इसका कारण जानने के लिए आपके कई परीक्षण होंगे। आपके लक्षण निम्नलिखित सामान्य परीक्षणों का उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि क्या आप अस्थिर एंजाइना है या दिल का दौरा पड़ा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईकेजी या ईसीजी विद्युत मापता है संकेत जो आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। क्या हो जाएगा? छोटे चिपचिपे पैड या पैच होंगे। आपकी छाती, बाहों और पैरों पर रखा गया। तार जुड़े हुए हैं। इन पैच से एक मशीन जुड़ी होगी। ये तार ईकेजी मशीन से कनेक्ट करें, जो विद्युत का रेखांकन करती है। आपके हृदय की गतिविधि आपका डॉक्टर निश्चित रूप से देखेगा। ये देखने के लिए ग्राफ पर परिवर्तन करें कि क्या आपका दिल नहीं मिल रहा है, पर्याप्त रक्त या यदि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है। Blood tests often are repeated to check for changes over time. Blood tests commonly used blood tests include troponin tests, CK or CKMB tests, and serum myoglobin tests. What will happen? A technician will take samples of your blood. Your doctor will look for an increase in cardiac proteins in your blood. The heart releases these protein substances into your blood when it is damaged. Blood tests often are repeated to check for changes over time.
रक्त परीक्षण अक्सर दोहराया जाता है। समय के साथ परिवर्तनों की जांच करें। रक्त परीक्षण आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रक्त परीक्षणों में ट्रोपोनिन शामिल होता है। परीक्षण सीके या सीकेएमबी परीक्षण और सीरम मायोग्लोबिन परीक्षण। क्या हो जाएगा? एक तकनीशियन आपका नमूना लेगा। खून। आपका डॉक्टर कार्डियक प्रो में वृद्धि की तलाश करेगा। आपके खून में किशोर हृदय इन प्रोटीनों को छोड़ता है। क्षतिग्रस्त होने पर यह आपके रक्त में समा जाता है। रक्त परीक्षण समय के साथ परिवर्तनों की जांच के लिए इन्हें अक्सर दोहराया जाता है। Cardiac catheterization, heart cath, is a procedure used to check the heart and its blood supply. This test can help your doctor see narrowed a plaque buildup in the arteries of your heart, measure blood pressure within your heart, evaluate how well your heart muscle is working, decide whether further treatment, such as stenting, is needed. कार्डियक कैथेटेराइजेशन हॉट कैथ एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है हृदय और उसकी रक्त आपूर्ति की जांच करने के लिए। ये परीक्षण आपकी मदद कर सकता है। चिकित्सक अपने हृदय की धमनियों में सिकुड़न या प्लाक जमा होना देखें। अपने हृदय के भीतर रक्तचाप को मापें। मूल्यांकन करें कि आपके हृदय की मांसपेशियां कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। निर्णय लें कि क्या आगे का उपचार, जैसे स्टेंटिंग, किया जाना चाहिए। आवश्यकता है। What will happen to perform a cardiac catheterization? A thin flexible tube called a catheter is put into an artery in your groin, femoral artery, or wrist, radial artery. The catheter is then slowly guided through your arteries by a heart doctor who can see the progress on a computer screen. Once the catheter has reached your heart, a small amount of dye is injected. Your heart doctor is able to see the dye move through your heart. This helps show any blockages in your heart and whether further treatment is needed. क्या हो जाएगा? कार्डियक कैथेटेराइजेशन करने के लिए एक पतली लचीली ट्यूब जिसे कैथेटर कहा जाता है, धमनी में डाली जाती है। आपकी कमर, ऊरू धमनी या कलाई, रेडियल धमनी में। फिर कैथेटर को धीरे धीरे आपकी धमनियों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। एक हृदय चिकित्सक जो कंप्यूटर पर प्रगति देख सकता है। स्क्रीन। एक बार जब कैथेटर आपके दिल तक पहुंच जाता है, तो एक छोटा सा डाई की मात्रा इंजेक्ट की जाती है। आपका हृदय चिकित्सक देखने में सक्षम है। रंग आपके हृदय से होकर गुजरता है। इससे किसी को भी दिखाने में मदद मिलती है। आपके दिल में रुकावटें हैं और क्या आगे का इलाज है। आवश्यकता है। How is acute coronary syndrome treated? The priority for treating a heart attack or unstable angina is to restore blood flow to your arteries to minimize the amount of damage to your heart muscle. The following are commonly used treatment options. Coronary angioplasty is a procedure used to widen heart arteries that have become partially or completely blocked. It is done by inserting a catheter-guided balloon through a small opening in your leg or arm. The balloon is guided to the blockage, where it is inflated. As the balloon inflates, it pushes the plaque against the artery wall. The balloon is then deflated and removed. This will improve blood flow to your heart. Often, a stent, described in the section below, is then placed to keep the heart artery open. Acute coronary syndrome का इलाज कैसे किया जाता है? दिल का दौरा या अस्थिर एंजाइना के इलाज के लिए प्राथमिकता बहाल करना है। आपकी क्षति की मात्रा को कम करने के लिए आपकी धमनियों में रक्त का प्रवाह। हृदय की मांसपेशी। निम्नलिखित आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उपचार विकल्प हैं। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हृदय को चौड़ा करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। धमनियां जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं। ये एक कैथेटर निर्देशित गुब्बारा डालकर किया जाता है। आपके पैर या बांह में छोटा सा छेद। गुब्बारे को निर्देशित किया जाता है। रुकावट।
जहां यह फुलाया जाता है। जैसे ही गुब्बारा फूलता है, वह धक्का देता है धमनी की दीवार के विरुद्ध पट्टिका। फिर गुब्बारे की हवा निकाल दी जाती है और हटा दिया गया। इससे आपके हृदय में रक्त का प्रवाह बेहतर होगा। अक्सर फिर एक स्टेंट नीचे अनुभाग में वर्णित रखने के लिए रखा जाता है। हृदय धमनी खुली। Stent procedure. A stent is a small wire mesh tube placed in an artery to keep it open after angioplasty. Some stents are coated with medication that is slowly released into the artery to help prevent scar tissue from causing a blockage in the future. These are called drug-eluting stents. The priority for treating a heart attack or unstable angina is to restore blood flow to your arteries to minimize the amount of damage to your heart muscle. स्टेंट प्रक्रिया। स्टेंट एक छोटी तार मेश ट्यूब होती है जिसे एक में रखा जाता है। एंजियोप्लास्टी के बाद धमनी को खुला रखना। कुछ स्टेंट लेपित होते हैं मदद के लिए दवा के साथ जिसे धीरे धीरे धमनी में छोड़ा जाता है। भविष्य में निशान ऊतक को रुकावट पैदा करने से रोकें। इन्हें ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट DES कहा जाता है। दिल के दौरे के इलाज के लिए प्राथमिकताएं। अस्थिर एंजाइना का उद्देश्य रक्त प्रवाह को बहाल करना है की मात्रा को कम करने के लिए आपकी धमनियों में आपके हृदय की मांसपेशियों को नुकसान